Yes, screen is visible to everyone, students. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, okay. Yes, our subject is AWP. Okay, what is the subject name? AWP, Advanced Web Programming. Okay, this is a theory plus practical subjects. Okay, so we have to learn a theory and practical parallelly because this is a programming subject. Okay, Advanced Web Programming. In the first semester, you have learned the web programming subjects. Okay, in that subject, we had learned about the HTML language, JavaScript, एंड जावास्क्रिप्ट और क्या पढ़ा हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट एंड और एक पढ़ा ना हमने कौन सा लैंग्वेज से वेब प्रोग्रामिंग किया हम्म PHP. यस पीएचपी ओके वेब प्रोग्रामिंग मीन्स क्या टू डेवलप द वेब एप्लीकेशंस ओके वेब प्रोग्रामिंग मतलब क्या डेवलप द वेब एप्लीकेशंस वेब यू नो नाउ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब वेब मतलब क्या the applications which are run in the internet okay so in the first semester we had learned the basic languages like php html and javascript but in this semester in this subject advanced web programming subject we will learn about the .NET okay C# language okay I will explain in detail what is .NET what is C# language now just see the syllabus okay so in these subjects we will learn the practicals plus theory तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे .NET okay what is .NET .NET is a framework तो total 5 unit as usual जैसे आपको है every subjects there are total 5 units okay in every unit we will learn in detail about the C# language C# is a language 1 minute what happening right the first unit is basic regarding .NET what is .NET then C# language then types objects namespaces the second is web fundamentals okay then third unit is regarding errors the fourth is a database and the fifth is security and fundamentals this is a program in this subject we will learn the C# language okay so language मतलब अगर लैंग्वेज है तो हमको एज यूजुअल जैसे अपने लैंग्वेज पढ़ा वैसे हर एक लैंग्वेज में वी हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल हाउ टू हैंडल द एरर हाउ टू डू डिजाइनिंग्स वगैरह तो ये सारा हम लोग पढ़ेंगे इन दिस subjects okay parallelly I will give you the one question bank okay the question bank this is a question bank for 2018-19 but you can refer for this semester also in this question bank there are every questions each and every questions of every unit will be included in this question bank okay so you have to refer this question bank ठीक है जैसे जैसे हमारा टॉपिक खत्म होगा यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक विद द आंसर्स ओके मैं आपको हर एक बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि व्हाट इज द असाइनमेंट I will give the this question bank in advance. Okay, so you will just write the answers of the question. जैसे जैसे हम लोग कवर करेंगे वैसे वैसे जो टॉपिक हमने कवर किया आपको वो नोटबुक में लिखना है ठीक है फॉर एग्जाम्पल इन द first lecture I will cover the .NET framework so you have to write the answer of this question in your notebook assignment notebook ठीक है every time मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपको ये लिखना है ये मैं आपको दे दूंगी ठीक है आई विल गिव दिस क्वेश्चन बैंक तो आपको जैसे जो चैप्टर खत्म होगा आपको आंसर लिखना है ठीक है क्लियर स्टूडेंट्स दिस इज असाइनमेंट्स आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस में एडवांस में ही दे रही हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस है बट यू हैव टू राइट ऑल दी क्वेश्चंस आंसर्स ठीक है आपको हर एक लिखना है तो ही आपका जो बेसिक्स है द बेसिक्स विल बी क्लियर ओके बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स टू हैव यू हैव टू क्लियर ऑल दी डाउट्स ऐसे नहीं है कि थियरी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा दैट इज थियरी सब्जेक्ट्स ठीक है डीबीएमएस भी थोड़ा प्रैक्टिकल भी था बट उसमें थियरी भी था तो ऐसे अब हम लोगों ने उसमें रट्टा मार लिया हो गया बट नो ठीक है इसमें रट्टा नहीं मारना है यू हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज ओके आपने अभी तक कौन से लैंग्वेज पढ़ा है यस नाउ अप टू दिस सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर विच लैंग्वेजेस यू हैव लर्न कौन से लैंग्वेजेस पढ़ा आप लोगों ने यस मैं ऑडिबल मेरा आवाज आ रहा है ना Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ तो कौन से लैंग्वेजेस विच टाइप ऑफ लैंग्वेजेस यू हैव लर्न up to last semester Python, yes python Python, hmm? JavaScript, and ये दो languages थी मैम. थोड़ा थोड़ा जावा HTML जावास्क्रिप्ट PHP
Yes. database management system और Yes, very good. Okay, so you have to learn. You had learned the basic C language. Okay, then C++ language, then web programming. In the web programming, we had learned the HTML, PHP. Okay, and then Python in the third semester you had learned the Python subject. Okay, the Python is again language. Okay, so what is a language? Language मतलब क्या? uh, through which you can develop your programs, you can develop your applications in the software. Okay, in the software you can develop the your applications, programs. You can run the programs using that languages. Each and every language have some rules, regulations. Okay, how to declare the variable. Okay, how to write the loops. Okay, so each and every language has rules and regulations. The concept will be same. The meaning of variable, what is the meaning of variable? What is a variable? Variable क्या है? What is a variable? कौन बताएगा मुझे? What is variable? वेरिएबल नाम तो हमारे इंटीजर डेटा टाइप के दो दूसरे का मन Yes, वेरिएबल एक वेरिएबल एक स्टोर करता है. Yes, okay, we are using the variable to store the values. Okay, वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वेरिएबल. सो मीनिंग ऑफ वेरिएबल इन ईच एंड एवरी लैंग्वेज विल बी सेम. ओके, मतलब जो आपने सी लैंग्वेज पढ़ा इन द सी लैंग्वेज, वेरिएबल का मीनिंग वही है. पाइथन में भी वेरिएबल का मीनिंग वही है. ठीक है, जावा में भी वेरिएबल का मीनिंग वही है. एंड जो हम लोग अभी पढ़ेंगे इन दिस सेमेस्टर में, ये जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे एडवांस वेब प्रोग्रामिंग, .NET, C# जो लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी वेरिएबल का मीनिंग सेम है. ओके, तो व्हाट आई वांट टू से कि जो कंसेप्ट्स है, जो लैंग्वेजेस का कंसेप्ट्स है, द कंसेप्ट्स विल बी सेम इन ऑल द लैंग्वेजेस. वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशंस. ओके, कंसेप्ट सेम है, उसका मीनिंग सेम है, बट व्हाट विल बी डिफरेंट? द सिंटैक्स. ओके, जो सिंटैक्स है, फॉर एग्जांपल आप लोग वेरिएबल जो है वो इन द सी लैंग्वेज हाउ यू विल डिक्लेयर द वेरिएबल इंटीजर ए. ओके, आप कैसे लिखते हो? इंटीजर ए. पाइथन में कैसे लिखता है? आई डोंट नो पाइथन, बट हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखा? VAR देन ए. ओके, मतलब वेरिएबल का यूज तो वही है, बट चेंज क्या हो रहा है? सिंटैक्स चेंज हो रहा है. सो इन दिस लैंग्वेज में भी जो हम लोग C# लैंग्वेज जो पढ़ेंगे, व्हाट इज C# लैंग्वेज, आई विल एक्सप्लेन. तो C# लैंग्वेज में जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो कंसेप्ट जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, ऑल दी कंसेप्ट जो है वो सेम रहेगा. ओनली उसका सिंटैक्स जो है, द सिंटैक्स विल बी चेंज. ओके, द प्लेटफॉर्म in which you will run your programs, in which you will develop your application, that will be different. वो अलग होगा. बाकी जो कंसेप्ट सारे हैं वो कंसेप्ट सेम रहेगा. तो ऐसे नहीं है कि वेरिएबल या तो लूप्स या तो कंडीशन जो सी लैंग्वेज में अलग है, पाइथन में अलग है, .NET में अलग है. नहीं, ठीक है, वो सब सेम रहेगा. तो मुझे वही बताना है, कंसेप्ट सेम रहेगा, ओनली सिंटैक्स चेंज रहेगा. एंड द न्यू लैंग्वेज है दैट इज एडवांस लैंग्वेज. C# इज एडवांस लैंग्वेज है. तो एडवांस लैंग्वेज है तो उसमें जो सी, जो पाइथन, जो जावा में जो है, प्लस उससे कुछ न्यू फीचर्स अवेलेबल है इन दिस लैंग्वेज. ओके, सो आपको न्यू कुछ सीखना मिलेगा, कंसेप्ट न्यू सीखने मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज में आप लोगों ने डिजाइनिंग नहीं किया. इन द सी लैंग्वेज यू कैन नॉट डिजाइन सम एप्लीकेशन. आप एप्लीकेशन डिजाइन नहीं कर सकते. सी लैंग्वेज में कर सकते हो? नहीं. बट यस, पाइथन प्लस जावा, एडवांस जावा, या तो फिर वेब प्रोग्रामिंग, या तो HTML, या तो ऐसे जो हायर लैंग्वेज है उसमें यू कैन डेवलप योर एप्लीकेशन. तो हर एक लैंग्वेज कोई बेसिक पुराने लैंग्वेज का क्या होता है? एक्सटेंशन होता है, इन विच वी कैन डेवलप समथिंग न्यू. ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट बेसिक. टुडे आई विल गिव द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द एडवांस वेब प्रोग्रामिंग. ठीक है, द सब्जेक्ट नेम इज अगेन, आपको याद रखना है, एडवांस वेब प्रोग्रामिंग, AWP. वेब प्रोग्रामिंग, यू नो व्हाट इज अ वेब प्रोग्रामिंग. ओके, वी हैव ऑलरेडी डन द वेब प्रोग्रामिंग इन द फर्स्ट सेमेस्टर. ठीक है, यूजिंग द HTML, जावास्क्रिप्ट. ठीक है, हम लोगों ने जो वेब प्रोग्रामिंग किया, जो डिजाइनिंग किया, वो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में किया यूजिंग द HTML. बट इन द HTML वी कैन ओनली डिजाइन, वी कैन नॉट राइट द कोडिंग. Okay, in the HTML we can design, but we cannot do the coding. For coding हमने क्या यूज किया था? HTML प्लस जावास्क्रिप्ट. ओके, हमने क्या यूज किया था कोडिंग करने के लिए? डिजाइनिंग प्लस कोडिंग करने के लिए हमने क्या यूज किया? कॉम्बिनेशन यूज किया. हमने डिजाइनिंग किस में किया? ओके, वी हैड डन द डिजाइनिंग इन द HTML लैंग्वेज, एंड देन कोडिंग यूज करने के लिए वी हैड यूज द जावास्क्रिप्ट. Okay, but in this language
we can combine both together. ठीक है. So .NET. Okay, what is a .NET? In the advanced web programming subject, we will learn about the .NET. Okay. किसी को पता है what is .NET? Have you know what is .NET? What is a .NET? डोंट नो मैम. ओके, डोंट नो. ओके, .NET आपने बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा. ठीक है. इन द इंडस्ट्री नाउ, अभी जो मार्केट में चल रहा है, दैट इज अ जावा लैंग्वेज है, दैट .NET सब .NET है. देन पाइथन भी नाउ मार्केट में, अभी पाइथन लैंग्वेज भी चल रहा है. ओके, तो .NEट इज अ प्लेटफॉर्म. ओके, .NEट नॉट इज अ लैंग्वेज. .NEट जो है वो लैंग्वेज नहीं, इट इज अ प्लेटफॉर्म. ओके, .NEट इज अ प्लेटफॉर्म. नाउ जब भी आप व्हेन यू आर सर्चिंग दी जॉब्स, फॉर एग्जांपल आपको naukri.com जो है उसका अपना प्रोफाइल जो है वो एक बार उसमें आप रजिस्ट्रेशन करके देखना, उसमें BSc IT कंप्लीट डाल के देखना, यू विल गेट दी मोर जॉब्स. ठीक है. तो उसमें जॉब्स में आप लोग, आपको ASP.NET के लिए आएगा, फॉर एग्जांपल वैकेंसी इन दिस कंपनी फॉर .NET. ओके, तो .NEट इज नॉट अ लैंग्वेज. ओके, .NEट लैंग्वेज नहीं. .NEट क्या है? .NEट इज अ प्लेटफॉर्म. In that platform we can develop the different types of application using different types of languages. Okay, for example C language जो है, that is not platform. C is a language, Python is a language, Java is a language. Okay, for example if you want to do some program in Java, so you have to know the rules and regulations of Java language. Python में करना है तो आप Python के लिए क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हो? सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग फॉर द पाइथन के लिए क्या करते हो? जैसे सी के लिए यू आर यूजिंग दी टर्बो सी सॉफ्टवेयर. ओके, जावा के लिए यू हैव टू यूज JDK. पाइथन के लिए क्या यूज करते हो? पाइथन के लिए किसमें प्रोग्राम? जेडीके. पाइथन किसमें किया? जेडीके. JDK में किया पाइथन. ओके, आई डोंट नो पाइथन. नहीं नहीं, पाइथन जेडीके में नहीं होता मैम. नोट पैड, पाइथन नोट पैड. ओके, जावास्क्रिप्ट जेडीके में होता है मैम. ओके, ओके, ठीक है. So what is a .NET? The .NET is a platform. Okay, .NET is a platform. .NET is not a language. You have to clear this concept. ASP.NET, Active Server Pages .NET. ठीक है. तो what is Active Server Pages वो मैं आपको बताऊंगी, but अभी now what is .NET? तो .NET जो है, that is a platform, not a language. Okay, the full form of .NET is Network Enabled Technologies. Okay, what is the full form of .NET? The full form of .NET is Network Enabled Technologies. Okay, in the .NET you can run any type of applications. Okay, कोई भी type का application you can create under the .NET framework. .NET is a framework. .NET is a platform. Okay, जैसे आपका Turbo C is a platform for only C language के लिए. Okay, C के लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो? Turbo C. ठीक है. देन जावा के लिए क्या यूज करते हो? JDK. तो पर्टिकुलर जावा के लिए यू हैव टू इंस्टॉल JDK. सी के लिए टर्बो सी करना है, पाइथन के लिए और कुछ इंस्टॉल करना है. बट .NET क्या है? इट इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म है. ठीक है, इट इज अ फ्रेमवर्क है इन विच यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ लैंग्वेजेस. .NEट ये जो फ्रेमवर्क है, दैट सपोर्ट्स मैनी लैंग्वेजेस. मैं आपको बताऊंगी कौन से लैंग्वेजेस से हम लोग इसमें एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं. तो .NEट provide so many languages, okay, for developing different types of applications. ऐसे नहीं है कि .NET framework में we can use only C language to C++. Under the .NET framework we can make any type of application using any languages. अगर आपको Java अच्छे से आ रहा है तो you can make the applications using the Java. अगर आपको Python अच्छे से आ रहा है तो you can make your application using the Python language. In this syllabus, मतलब in this subject we will learn this C# language. अगर आपको C# language अच्छे से आ रहा है तो you can make your application using C# language under the .NET framework. मतलब ये जो framework है, .NET is a framework. .NET is a platform, okay, in which you can make any type of application using any languages. 40 या 40 plus languages .NET जो है, आई थिंक अभी तो मोर देन 100 आई थिंक लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है .NET प्लेटफॉर्म. तो ये प्लेटफॉर्म में आप कोई भी एप्लीकेशन, एनी टाइप, विच टाइप ऑफ एप्लीकेशंस वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन से टाइप के एप्लीकेशन वी कैन क्रिएट. तो हर एक टाइप का एप्लीकेशन वी कैन क्रिएट अंडर द .NET फ्रेमवर्क. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज .NET. .NEट इज अ प्लेटफॉर्म. .NEट इज अ फ्रेमवर्क. ओके, इट इज नॉट अ लैंग्वेज. वो लैंग्वेज नहीं है. .NEट क्या है? फ्रेमवर्क है, प्लेटफॉर्म है, कि इन विच वी कैन डेवलप मैनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग what I am using, कौन सा वर्ड मैं यूज करूँ? यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस.
कोई भी टाइप का लैंग्वेजेस हम लोग यूज करके डॉटनेट फ्रेमवर्क में एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क. Okay, the full form of .NET is Network Enabled Technologies. You have to remember the full form of .NET. Okay, dot then NET and Network Enabled Technologies. Okay, the .NET is a free. Okay, the .NET is a free. You can download the .NET framework का जो software है, you can easily download from the internet. Okay, cross platform मतलब we can use any type of languages. Open source development platform for building many different types of application. ठीक है, तो .NET is a free cross platform open source developer platform for building many different types of application. जो मैंने आपको explain किया वही line है. With .NET you can use multiple languages, editors and libraries to build for web, mobile, desktops, game and IoT. Okay, we can make the web application, we can make the mobile applications, we can make the desktop application. Sorry, we can also make the games. Okay, games भी हम लोग create कर सकते हैं under the .NET framework and IoT. Okay, now IoT is a new subject for you. You will learn this semester. I think Internet of Technologies जो applications है वो भी you can create under the .NET framework. So .NET is a framework. It is a platform. I am repeating this again and again because you have to understand what is .NET. आपको .NET क्या है समझ में आएगा तो आपका जो कंसेप्ट है, जो प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे वो समझ में आएगा. ठीक है, अभी तक आपने क्या किया, ओनली एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ा. ठीक है, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करने के लिए तो रन करने के लिए आप क्या करते हो, व्हाट यू आर डन, यू आर यूजिंग इंस्टॉल पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो कि जिसमें फॉर एग्जांपल इफ यू इंस्टॉल्ड C#, सॉरी Turbo C. So in that Turbo C software, you can write the program using only C language. Okay, if you are installing JDK या तो PLSQL, so in that software you can do particular language से ही आप लोग you are doing the coding. Okay, but under the .NET framework, you can make any type of application using any languages. कोई भी language use करके आप लोग कर सकते हो. ठीक है, so this is a .NET. The .NET is a developer platform made up of tools, programming languages, and libraries for building many different types of applications. Okay, जैसे मैंने आपको बताया, this is a conclusion line है. .NET is a developer platform. .NET is a platform और framework. You can also say the framework. आप उसको framework भी बोल सकते हो. What is the meaning of framework? Framework मतलब collection of the tools. different types of tools available है, programming languages available है, and libraries. Okay, what is a library? Yes, what is the meaning of library, students? What is the meaning of library? Anyone can say? यूज किया ना आप लोग ने collection of लाइब्रेरी? हाँ बोलो. यस कोई तो आंसर दे रहा था. यस चलो बताओ मुझे. लाइब्रेरीज, you are using libraries ना, different libraries you are using in different languages. आपने library use करते हो ना? What is the use of that library? Ma'am, predefines value. Yes, very good. Okay, predefines header files. Okay, आप header files use करते हो. ठीक है, तो what is header files? Header files आपके उसमें है libraries में. Okay, तो libraries provide the predefined classes, predefined functions, predefined methods. Okay, that you can use in your application. For example, printf. Printf is a predefined function. तो वो function कहाँ पे available है? Printf in the stdio header file. And what is header file? Header file is a libraries. Okay, so in the .NET framework we can use many languages. तो हर एक languages के लिए libraries available हैं. For example, अगर if you are using the C++ language, अब C++ language use करें under the .NET framework. Okay, so what the .NET framework provides? The .NET framework will provide the libraries for the C++ language. If you are using the Python language under the .NET framework, okay, अगर आप लोग .NET framework में Python language choose करोगे, you want to make the application using Python language, the .NET framework will provide the libraries for the Python languages. So जितना languages है, for every languages the libraries are available under the .NET framework. Okay, okay, so .NET is a platform or you can say the framework. Okay, what is the meaning of framework? Framework मतलब platform that made up of tools, programming languages, libraries available है
Why? For building the many different types of applications. Okay, so that is a basic introduction of the .NET. Now clear what is a .NET? .NET framework clear what is a .NET? Okay, we will learn in Yes, the ma'am. हाँ we will learn in detail about the .NET. ये तो मैं आपको overview दिया है, ठीक है, कौन से which components available है, which tools available है, which programming languages available है, ये पूरा we will learn in detail about the .NET framework. ये just basic है कि what is the .NET framework, उसमें क्या क्या components available हैं, क्या क्या tools available है, which type of languages है. ओके ये सारा हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे विद द फिगर के साथ. यस, व्हाट इज डॉट नेट फ्रेमवर्क, वही है, जस्ट उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है. द डॉट नेट इज अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क विच इज डिजाइन एंड डेवलप बाय द माइक्रोसॉफ्ट. ओके, किसने डेवलप किया डॉट नेट फ्रेमवर्क? माइक्रोसॉफ्ट. Okay, the .NET is a software framework. Obviously it is a software framework, software ही है. Why? Because हम लोग we will make the applications in this framework, so it is a software framework which is designed and developed by the Microsoft. उसका प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट. ओके, अनदर कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो माइक्रोसॉफ्ट का अभी डेली यूज में? विच प्रोडक्ट यू आर यूजिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट का? कौन सा यूज कर? Word. यस, ओके, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो वर्ड पावर पॉइंट यू आर यूजिंग दैट इज प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. द सेम डॉट नेट इज a product of the Microsoft. Okay, the first version of the .NET framework was 1.0 which came in the year 2002. This is a basic introduction. ठीक है, ये basic है, आपको as a knowledge you have to remember all these things about the .NET framework. The first version that was 1.0. ठीक है, you know the software है तो obviously market में every year या तो you can say in periodical time 6 months या तो 4 months में कुछ ना कुछ अपडेट्स न्यू मार्केट में आता रहता है. तो जो फर्स्ट वर्जन इसका डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने दैट वाज 1.0 इन ईयर 2002. ओके, देन अभी माइक्रो लेटेस्ट 2000 मतलब 20 में कुछ तो 10 कुछ तो वर्जन चल रहा है. अभी जो लेटेस्ट वर्जन जो है डॉट नेट का दैट इज 10 है, वो डेवलप हुआ था 1.0 इन 2002 में फर्स्ट वर्जन. नाउ अभी आई थिंक 10 कुछ तो है मार्केट में. जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओके, पहले बेसिक था, देन 90 ऐसे कुछ तो था. देन अभी कौन सा चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन? कौन सा चल रहा है अभी? कौन सा यूज कर रहे हो? 10 यूज कर रहे हो ना? आई थिंक 12 है. यस, एमएस वर्ड का कौन सा वर्जन है लेटेस्ट? यू शुड नो ना कि मार्केट में क्या चल रहा है अभी. बेसिक्स अपडेट करते. 8 है. एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो यूज करते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोडक्ट, कौन सा वर्जन है अभी उसका लेटेस्ट? अभी जो मैम लेटेस्ट में चल रहा है वो 12 है. 12 है ना? हाँ 12 है. ओके, तो ये यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है, क्योंकि नाउ वी आर द आईटी स्टूडेंट्स. ओके, तो एज आईटी स्टूडेंट्स यू शुड नो कि विच अपडेशंस जो है बेसिक आप लोग जो यूज करो उसका कौन सा अभी मार्केट में चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए. सॉफ्टवेयर इज अ वेरी वास्ट है. ठीक है, वास्ट, बहुत वास्ट है. उसको उतना तो हमको नहीं समझ में आएगा, बट जो बेसिक्स जो एप्लीकेशंस जो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग एटलीस्ट यू शुड नो कि विच वर्जन्स जो मार्केट में अवेलेबल अभी है. ओके, in easy words it is a virtual machine for combining and executing programs written in different languages like C++, VB.NET, etc. C Sharp is a language, VB.NET is a language. Okay, जैसे Python language है, C is a language, Java is a language, same C Sharp is a language. C Sharp is a language. Okay, C Sharp इसको जो बोलता है वो क्या बोलते हैं? C and hash करके है, तो उसका हम लोग कैसे उसको बोलेंगे? C Sharp, SHARP. तो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे. VB.NEट है, जावा, बहुत सारा लैंग्वेजेस .NET फ्रेमवर्क इज सपोर्टिंग. ओके, ऐसे नहीं कि 2 to 4 लैंग्वेज, बहुत मोर देन 100 लैंग्वेजेस जो है .NEट फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है. तो एनी लैंग्वेज यू कैन नो, या तो आपको जो भी लैंग्वेज आता है यूजिंग दैट लैंग्वेज यू कैन मेक एप्लीकेशंस अंडर द .NEट फ्रेमवर्क. ओके, ऐसे नहीं कि कोई भी, अगर आपको पाइथन आ रहा है तो यू कैन यूज पाइथन. आपको सी तो नहीं है, सी तो बेसिक है. C++ आ रहा है तो यू कैन यूज C++ लैंग्वेज. ठीक है, तो बट इन आवर सिलेबस वी विल लर्न दी C Sharp लैंग्वेज. ठीक है, इन आवर सिलेबस फॉर दिस सब्जेक्ट एज अ यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कौन सा लैंग्वेज पढ़ेंगे .NEट फ्रेमवर्क में? C Sharp लैंग्वेज. ओके, तो आई विल टीच यू व्हाट इज अ C Sharp लैंग्वेज.
how to write programs, how to write applications using the C# language. But you can make applications using any languages. ठीक है, .NET जो support करता है, I will show you कि कौन से next slide में है कि .NET कौन से language support करता है. आप कोई भी लैंग्वेज यूज करके एप्लीकेशंस बना सकते हो अंडर दी .NET फ्रेमवर्क. बट इन अवर सिलेबस, ओके, ये जो हमारा सिलेबस है उसमें हम लोग कौन सा लैंग्वेज पढ़ेंगे? वी विल लर्न दी C# लैंग्वेज. ओके, एक ही लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे बिकॉज मल्टीपल लैंग्वेजेस पॉसिबल नहीं है एक सेमेस्टर में कवर करना. तो हम लोग .NET में अंडर दी .NET फ्रेमवर्क हम लोग क्या पढ़ेंगे? C# लैंग्वेज पढ़ेंगे. इट इज यूज्ड, .NET framework is used to develop form-based application, web-based applications and web services. Okay, what is form-based application, what is web-based and what is web services applications? I will explain. Next slide में भी है उसका कि which type of application we can develop. There is a variety of programming languages available on the .NET platform. Okay, variety of बहुत सारे languages available है VB.NET and C# being the most common ones. ओके, जो मार्केट में मतलब जो अभी इंडस्ट्री में आप लोग जाओगे तो इंडस्ट्री में जो वैकेंसी रहता है वो C# मतलब ASP.NET एंड VB.NET का जो वैकेंसी अभी बहुत चलता है. ओके, यू कैन यूज एनी लैंग्वेजेस बट अभी जो मार्केट में जो है मतलब जो इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है दैट इज कौन सा लैंग्वेज होता है? VB.NET और C# लैंग्वेजेस. ओके, VB is a language, Visual Basic. It is a language. जैसे C# language है, Python language है, वैसे VB is a language. VB, Visual Basic. It is a one type of language है, programming language है. ठीक है, तो वो you can use C# market में चल रहा है. ठीक है, तो we will learn about the C#. It is used to build application for Windows, phone, web, etc. Okay, you can make Windows application. You can also create the mobile applications. Okay, under the .NET framework. It provides a lot of functionalities and also support industry standards. Okay, now in these subjects we will cover the basics, but now market में भी MVC वगैरह चल रहा है .NET framework का. ठीक है, okay. What type of applications can we develop using .NET? Okay, now अभी तक what you understand about the .NET? Yes, कोई बताएगा मुझे क्या समझ में आया? What is .NET? Yes, कोई बताएगा मुझे अभी जो मैंने आपको पढ़ा है what is .NET? क्या समझ में आया आपको? What is .NET? मैम एप्लीकेशंस बिल्ड करने हेल्प कर रहा है मैम. विंडोज फोन और वेब Yes. में मैम. Okay. Yes. और कोई? Yes. Yes, students, चलो. मैम .NET जो है कि मतलब लैंग्वेज नहीं होता है, .NET एक सेपरेट फॉर्म होता है. Yes. Okay. Good. Okay. .NET is a platform. .NET is a framework. You can use platform word or framework word also you can use. Okay. So .NET is a platform or framework. Okay. It is not a language. .NET language नहीं है. Okay. .NET language नहीं है. It is a platform. Okay. So in the .NET language we can build or we can make many type of applications using different languages. Okay, कौन सा लैंग्वेज यूज करके डिफरेंट कोई पर्टिकुलर एक लैंग्वेज नहीं, जो भी लैंग्वेजेस यू कैन नो आपको पता है उससे यू कैन मेक योर एप्लीकेशंस. ओके, सो इन शॉर्ट .NET इज अ प्लेटफॉर्म और इट इज अ फ्रेमवर्क. इट इज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट. ओके, किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है. ओके, एंड इट वाज केम इन द ईयर 2002. ओके, 2002 में वो मार्केट में आया. आपको बेसिक्स यू शुड नो अबाउट दी .NET फ्रेमवर्क. ओके, नाउ मैंने आपको वर्ड यूज किया था वी कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन. नाउ विच टाइप ऑफ एप्लीकेशंस? कौन से टाइप के एप्लीकेशन? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन तो है, बट विच टाइप ऑफ एप्लीकेशंस? ओके, सो नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज different types of applications which we can develop using the .NET. Okay, yes, C language में कौन सा टाइप का एप्लीकेशन आप लोगों ने क्रिएट किया? इन दी C language में आपने क्या किया? बेसिक C language में क्या किया? See, in this C language, प्रोग्राम को मैंने yes, okay, दूसरे प्रोग्राम को रन किया. yes, okay, you had done the basic programs. Okay, basic programs के जिसका आपने प्रोग्रामिंग लिखा and your output comes in the आपका जो विंडो है ब्लैक विंडो उसमें आउटपुट आता है. मतलब you cannot do the designing in the C language. Okay, C language अपने डिजाइनिंग नहीं कर सकते. Yes, in the C++ language you can make the objects. Okay, you can define the methods. Okay, you can make the class.
Okay, then using the object you can call the methods of that class, variables वगैरह आप वो सब objects आप लोगों ने बनाया in the C++ language. Okay, in the Python language I don't know what is the Python language में आपने क्या किया, but in the at Java, ठीक है, in the Java language same आप लोगों ने प्रोग्राम ही किया, ठीक है, but न्यू कंसेप्ट उसमें था, जो दिस कंसेप्ट दैट आर नॉट सपोर्टेड बाय द C++ लैंग्वेज, वो न्यू फीचर्स आपने जावा में यूज किया. बट इन द एडवांस जावा यू कैन मेक द डिजाइनिंग इन दी वेब एप्लीकेशन, जो है वेब एप्लीकेशन. HTML में आपने क्या किया, डिजाइनिंग किया. इन दी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में आपने क्या किया, कोडिंग प्लस डिजाइनिंग किया. ओके, सो नाउ इन द .NET फ्रेमवर्क हम लोग ये सारी चीजें जो है डिजाइनिंग कोडिंग वगैरह वी कैन डू टुगेदर अंडर द .NET फ्रेमवर्क. द फर्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं दैट इज अ वेब एप्लीकेशन. यू नो व्हाट इज अ वेब एप्लीकेशन. ओके, आपको पता है व्हाट इज अ वेब एप्लीकेशन. What is a web applications? Applications which runs in the browser, okay, or which run using the internet. Okay, जो browser में run होता है application जिसको run होने के लिए needs the internet, that type of application called the web applications. Okay, in the HTML we had make the web application. HTML में हम लोगों ने web application create किया ना उसमें, क्योंकि जो डिजाइनिंग हमने किया तो उसका आउटपुट कहाँ पे आ रहा था, इन द ब्राउजर. ओके, बट HTML इज अ बेसिक लैंग्वेज, इट इज एकदम बेसिक लैंग्वेज, उसमें कुछ न्यू फीचर्स नहीं है. हर एक के लिए हमको कोडिंग लिखना पड़ता है. फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स वी हैव टू राइट द कोडिंग फॉर द टेक्स्ट बॉक्स. Okay, but under the .NET framework there are tools available. For example, if you want to make the form, आपको registration form बनाना है तो टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, तो ऑल जो डिजाइनिंग है दैट इज रेडीमेड है. ओके, मतलब आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फ्रॉम द टूल बॉक्स में से, मतलब टूल्स अवेलेबल है. ओके, जैसे आपको फॉर एग्जांपल लाइन ड्रॉ करना है HTML में वेब एप्लीकेशन में, या तो कुछ CSS यूज करना है तो यू हैव टू राइट द लॉन्ग कोडिंग आपको लिखना पड़ता था. बट इन दी .NET फ्रेमवर्क, अंडर द .NET फ्रेमवर्क वी कैन डू इजीली. व्हाई? बिकॉज टूल्स टेक्निक्स रेडीमेड अवेलेबल है, ओनली हम लोग उसका क्या करना है, उसका यूज करना है. तो फर्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इन अंडर द .NET फ्रेमवर्क दैट इज अ वेब एप्लीकेशन. व्हाट इज वेब एप्लीकेशन? एप्लीकेशंस व्हिच रन्स इन द ब्राउजर. ओके, जो ब्राउजर में रन होता है दैट इज अ वेब एप्लीकेशन. वेबसाइट्स, ओके, वेबसाइट्स क्या हो गया, वेब एप्लीकेशन. जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस यू आर यूजिंग, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अभी यूज कर रहे हो, ऑल एप्लीकेशंस आर कम्स अंडर द वेब एप्लीकेशंस. वो सब क्या हो गया, वेब एप्लीकेशंस हो गया. वेब मतलब इंटरनेट. ओके, द एप्लीकेशन जिसको रन होने के लिए नीड्स द इंटरनेट, इट्स कॉल्ड द वेब एप्लीकेशंस. वेबसाइट्स या तो जो आप ऑनलाइन यूज कर रहे हो, ऑल आर द वेब एप्लीकेशंस. ओके, वेब एप्लीकेशन ऑल्सो वी कैन क्रिएट, हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं. द सेकंड इज वेब सर्विसेज. Okay, the second web services we can also create the web services under the .NET framework. What is the services? HTTP. Okay, that is a service. XML, extended markup language. अभी आपको what is XML वो समझ में नहीं आएगा. Next हमको in the last unit we will learn about the XML, मतलब the protocols. Okay, the protocols which you are using. SMTP. SMTP is a protocol, you know, आपको पता है, in the network subjects here and subject you have learned different types of protocols. Okay, SOAP is a protocol, simple object access protocol. Okay, जो protocols, FTP is another protocol, file transfer protocol. तो जो ये services है, all these services also we can make under the .NET framework. Okay, what is the meaning of services? Services मतलब क्या, protocols. Okay, जो आप यूज करते हो फाइल ट्रांसफर करने के लिए, क्या लगता है, FTP. फॉर एग्जाम्पल मेल ट्रांसफर करना है तो मेल ट्रांसफर करने के लिए क्या लगेगा, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स आपने पढ़ा इन द नेटवर्किंग में, तो जो जितने भी प्रोटोकॉल्स है तो वो प्रोटोकॉल्स किसी ना किसी ने तो बनाया डायरेक्टली, तो वो मार्केट में नहीं आ गया. ओके, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ओके, तो व्हाट इज द यस स्टूडेंट प्लीज रिजॉइन. ओके, रिजॉइन करना, ये टॉपिक वी विल कंप्लीट करेंगे आज. ठीक है, तो प्लीज रिजॉइन, ये 40 मिनट्स के बाद कंप्लीट होता है ना, तो प्लीज रिजॉइन. ओके, तो वेब सर्विसेज मतलब क्या, द सर्विसेज आर डेवलप्ड बाय समवन एंड इट इज यूज्ड बाय ऑल पीपल्स. ओके, दैट कॉल्ड द सर्विसेज. तो वो सर्विसेज भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इन दी अंडर द .NET फ्रेमवर्क. क्लियर? HTTP, XML, SOAP, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल और एनी अदर प्रोटोकॉल जो आपने नेटवर्किंग में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, वो किसी ना किसी ने बनाए, देन यू कैन यूज, उसको यूज कर सकते हो.
ओके, बिकॉज इट इज अगेन सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर तो किसी ने कोडिंग थ्रू कुछ तो बनाया, तो दैट टाइप ऑफ सर्विसेज जो प्रोटोकॉल्स है, अगर इफ यू वांट टू मेक न्यू प्रोटोकॉल्स, आपको न्यू सर्विस प्रोवाइड बनाना है जो आप प्रोवाइड करोगे कस्टमर्स को, यूजर्स को, तो यू कैन आल्सो मेक दैट सर्विसेज, उसको क्या बोलते हैं, सर्विसेज, वेब सर्विसेज। ओके, तो वो सर्विसेज यू कैन क्रिएट अंडर द .NET फ्रेमवर्क। वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं